فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 60 پڑھنے جا رہے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 11، اور یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم یہاں پر پڑھیں گے والیوم 11 سے مکتوب 60 جو کہ کتاب کے صفحہ 175 پر ہے۔ امام علیہ السلام کا مکتوب ان عمال کے نام جن کا علاقہ فوج کے راستے میں پڑتا تھا۔ آئیے مکتوب کی سند کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ اس مکتوب کو نصر بن مزاحم نے، کہ جو سید رضی رحم اللہ سے پہلے کے تھے، کتاب صفین میں کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 442۔ لیکن جو مطالب نصر نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں ان کے پیش نظر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مکتوب نہ ہوں، کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے اور دو مکتوبات سے کے زیادہ مشابہ ہیں۔ یہاں پر ہم نے مکتوب کی سند کے حوالے سے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ عنوان ہے مکتوب پر ایک نظر۔ تفصیلات ہے، یہ مکتوب در حقیقت ان سپہ سالاروں اور مختلف شہروں میں زکوٰۃ جمع کرنے والے ذمہ داروں کی طرف ہے جن کے علاقوں سے لشکر کا میدان جنگ کی طرف جاتے وقت گزر ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لشکر کو شہروں سے گزرتے وقت اس بات کی اجازت ہوتی تھی کہ لوگوں کے اموال اور غذائی مواد میں سے جو دل چاہے اٹھا لے جائیں۔ یہ کام لشکر کے راستے میں پڑنے والے علاقوں کے لوگوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا باعث بنتا تھا۔ امام علیہ السلام اس مکتوب میں مذکورہ علاقوں کے حاکموں اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اہل علاقہ کی ضرورت کے مطابق ان کے لیے غذائی مواد چھوڑ دیں، اور لشکر کو بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ سوائے ضروری مواقع کے عوام سے الجھنے سے باز رہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اہل علاقہ کو بھی ہدایت دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں افراد لشکر سے الجھ نہ پڑیں، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کی شکایت امام علیہ السلام تک پہنچا دیں۔ واضح ہے کہ اگر اس جامع نصیحت پر عمل ہو تو امن و امان کی فضا قائم ہو جائے اور لشکر کے راستے میں پڑنے والے علاقوں کے عوام کے لیے کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ آئیے اب اس مکتوب کے آغاز اور اختتام کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ من عبد اللہ علی امیر المومنین الی من مر بہ الجیش، اور اختتامی کا الفاظ ہیں کہ فَأَنَا أُغَيِّرُهُ بِمَعَونَةِ اللَّهِ انشاءاللہ۔ ترجمہ، بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور علاقوں کے حاکموں کے نام جن کے علاقے میں سے لشکروں کا گزر ہوتا ہے۔ اما بعد، میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جو ان قریب تمہارے علاقے سے گزرنے والی ہیں، اور میں نے ان تمام باتوں کی نصیحت کر دی ہے جو ان پر واجب ہیں کہ کسی کو اذیت نہ دیں اور تکلیف کو دور رکھیں، اور میں تمہیں اور تمہارے اہل ذمہ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فوج والے کوئی دست درازی کریں گے تو میں ان سے بیزار رہوں گا، مگر یہ کہ کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو
और उसके पास पेट भरने का कोई रास्ता न हो, उसके अलावा कोई जालिमाना अंदाज से हाथ लगाए तो उसको सजा देना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन अपने सर फिरों को समझा देना कि जिन हालात को मैंने मुस्तस्ना करार दिया है उनमें कोई शख्स किसी चीज को हाथ लगाना चाहे तो उससे मुकाबला ना करे और टोके नहीं। फिर उसके बाद मैं लश्कर के अंदर मौजूद हूँ, लिहाजा जो ज्यादतियां हो या ऐसी सख्ती तुम पर हो कि जिसकी रोकथाम के लिए तुम्हें अल्लाह की मदद और मेरी तरफ रुजू होने की जरूरत हो तो मुझे इत्तला देना। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हालात को बदल दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तर्जुमा पढ़ने के बाद आइए शरह और तफसीर मिलकर पढ़ते हैं। उन्वान है, सिपाहियों को रास्ते के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तफसीलात हैं, जैसा कि ऊपर इशारा हुआ कि पहले वक्तों में सफर की तवालत के पेश नजर बाज औकात मैदान जंग की तरफ रवाना होने वाले लश्कर हफ्तों रास्ते में रह जाते थे और अपनी तमाम जरूरी अशिया साथ नहीं ले जा सकते थे। उनका ये मामूल होता था कि ग़िज़ाई और गैर ग़िज़ाई ज़रूरतों को रास्ते में आने वाले किसी भी मोहल्ले या इलाके से हासिल करते थे और कभी कभार इस सिलसिले में एतदाल का ख्याल न रखते हुए अपने रास्ते में पड़ने वाले लोगों पर जुल्म ज़्यादती भी करते थे और ये अमल अहले लश्कर की निस्बत अवाम की शदीद नफरत और दुश्मनी का बायस बनता था। चुनाचे हसास मौक़े पर वो उनकी हिमायत से दरेग करते थे। इमाम अलैहिस्सलाम इस मुख्तसर और जामे मकतूब में कि जिसके मुखातिब हाकिम और खिराज जमा करने वाले हैं, इस सिलसिले में जरूरी हिदायत सादिर फरमाते हैं। पहले आप फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा बंदे खुदा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ से इन खिराज जमा करने वालों और इलाकों के हाकिमों के नाम जिनके इलाके में से लश्करों का गुजर होता है। अम्मा बाद मैंने कुछ फौजें रवाना की हैं जो अनकरीब तुम्हारे इलाके से गुजरने वाली हैं और मैंने उन्हें उन तमाम बातों की नसीहत कर दी है जो उन पर वाजिब हैं कि किसी को अजियत न दें और तकलीफ को दूर रखें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अलैहिस्सलाम यूं सिपाहियों के फराइज को मुअय्यन फरमाते हैं कि लोगों को सताने से बाज रहें और अपने रास्तों में वाक़े लोगों पर जुल्म ज़्यादती न करें और आप अलैहिस्सलाम इन बातों को वाजिब इलाही के उन्वान से जिक्र फरमाते हैं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम इस मानी की ताकीद में फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा और मैं तुम्हें और तुम्हारे अहले ज़िम्मे को बता देना चाहता हूँ कि फौज वाले कोई दस्त दराजी करेंगे तो मैं उनसे बेजार रहूंगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपने इस हुक्म में पाए जाने वाले वाहिद इस्तिस्ना को यूं बयान फरमा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा मगर ये कि कोई शख्स भूख से मजबूर हो और उसके पास पेट भरने का कोई रास्ता ना हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यूं इमाम अलैहिस्सलाम पहले लश्कर को की जाने वाली ताकीद का तस्करा फरमाते हैं कि अपने रास्ते में करार पाने वाले लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचानी है। आप अलैहिस्सलाम उन लोगों से इजहार नफरत और बेजारी करते हैं जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। उसके बाद लश्कर के रास्ते में करार पाने वाले लोगों की जिम्मेदारी को भी मुअय्यन फरमाते हैं और वो ये कि अगर लश्कर को किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो उन्हें इससे मना न करें क्योंकि वो अवाम ही की खिदमत में होते हैं और दूर दराज सफर में अपने तमाम लवाजमात अपने हमरा लेकर नहीं जा सकते। फिर इमाम अलैहिस्सलाम लोगों में खुसूसन नादान जवानों और लश्कर के दरमियान हर किस्म के झगड़े को रोकने के लिए हाकिमों और उन इलाकों के ज़कात जमा करने वालों के लिए 2 हुक्म बयान फरमाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा इसके अलावा कोई जालिमाना अंदाज से हाथ लगाए तो उसको सजा देना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अपने सरफिरों को समझा देना कि जिन हालात में को मैंने मुस्तस्ना करार दिया है उनमें कोई शख्स किसी चीज को हाथ लगाना चाहे तो उससे मुकाबला न करें और टोके नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है जाहिर है कि ऐसे मकामात पर तरफैन से कुछ खिलाफ वर्जी सरजद हो सकती है, यानी बाज औकात सिपाही
लोगों के कुछ अमवाल या गरा कीमत चीजें ज्यादती करते हुए उनसे छीन कर ले जाएं, और कभी ये भी मुमकिन है कि बाज नादान अफराद यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की जरूरी चीजें देने से भी दरेग करें और यूं झगड़े शुरू हो जाएं। इन दोनों आमाल में से हर एक मोहल्ले में हंगामे का बायस बन सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम हर इलाके के हाकिम को हुक्म फरमाते हैं कि इन दोनों कामों से मुहतात रहें, चूंकि मुमकिन है कि जुल्म ज़्यादती वाक़े हो जाए और हाकिम उन्हें न रोक पाए। लिहाजा सिपाहियों और अवाम के दरमियान हंगामे को रोकने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि फिर उसके बाद मैं लश्कर के अंदर मौजूद हूँ, लिहाजा जो ज्यादतियां हों या ऐसी सख्ती तुम पर हो कि जिसकी रोकथाम के लिए तुम्हें अल्लाह की मदद और मेरी तरफ रुजू होने की जरूरत हो तो मुझे इत्तला देना। मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी अल्लाह की मदद से हालात को बदल दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुमलिकत इस्लामी का अपना सरबराह होता है और जालिम अनासिर अपने मजालिम जारी नहीं रख सकते। अगर तुम्हें कोई शिकायत हो तो कानून को हाथ में लेकर हंगामा खड़ा करने के बजाय मुझसे शिकायत करो, ताकि इंसाफ के साथ फैसला करते हुए हक को हकदार तक पहुंचा दूं और जालिम को सजा दूं और मजलूम को रिहाई अता करूं। ये मुख्तसर और जामे मकतूब इमाम अलैहिस्सलाम के नज़्म व ज़ब्त और लोगों के हुकूक की बहाली से मुताल्लिक इमाम अलैहिस्सलाम की तदबीर नीज इस्लामी मुमलिकत में हर किस्म के जुल्म ज़्यादती, फसाद और हंगामों की रोकथाम की बाबत आप अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बसीरत पर गवाह है। अगर इस मकतूब के मजमून पर अमल हो जाए तो इस किस्म के मामलात में होने वाले नुकसानात और मुश्किलात अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच जाएं। इसके बरक्स बहुत से जालिम हुक्मरान अपने जालिम सिपाहियों को खुश करने के लिए उन्हें बिल्कुल आजाद छोड़ते थे कि वो अपने रास्ते में पड़ने वाले लोगों के साथ हर किस्म की जुल्म ज़्यादती को रवा रखें, यहाँ तक कि उनकी गरां बहा अशिया लूट कर ले जाएं, ताकि इस अमल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लालची लोग उनकी फौज में भर्ती हो जाएं। ये बात काबिल तवज्जो है कि मकामी हुक्काम अपने अवाम के लिए दरपेश मसाइल को तदबीर और दुरुस्त फैसलों के जरिए हल कर सकते हैं, लेकिन अगर सिपाहियों और अवाम के दरमियान कोई मुश्किल पेश आए और अवाम सिपाहियों के सामने डट जाना चाहें तो ये अमल फसाद और हंगामों का बायस बनेगा। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं कि मकामी हुक्काम और ज़कात जमा करने वाले इन मामलात में दखल न दें, बल्कि उनकी शिकायत इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाएं, जो दुरुस्त और फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। सामीन, अब यहाँ पर हमने तफसीर शरह तफसीर मुकम्मल की। अब पढ़ने जा रहे हैं नुक्ता। उन्वान है सिपाहियों के अवाम के अमवाल से इस्तेफादे की कैफियत। आइए तफसीलात पढ़ते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि इस्लाम में दूसरों के अमवाल का इस्तेमाल उनके मालिक की इजाजत के बगैर किसी तौर पर जायज नहीं, और इस सूरत में इस्तेमाल करने वाला दुनिया व आखिरत में जामिन और जिम्मेदार ठहरता है। इससे अब ये सवाल पेश आता है कि पहले जमाने में सिपाहियों को ये इजाजत कैसे दी जाती थी और कि वो मैदान जंग में जाते वक्त अपने रास्ते में पड़ने वाले लोगों के अमवाल से उनकी रजायत के बगैर इस्तेफादा करें। इस सवाल का जवाब वाज़ेह है, क्योंकि पहले तो गुज़िश्ता ज़माने में हमल और नकल के वसाइल बहुत महदूद और इब्तिदाई सतह पर थे, और सिपाहियों के मकाम रवानगी से मैदान जंग और इस्लामी सरहदों के दिफा के मकाम तक का फासला बहुत तवील होता था, और इतने सारे ग़िज़ाई मवाद और दीगर ज़रूरी वसाइल को एक तुलानी मुद्दत के लिए इन इब्तिदाई सहूलतों के साथ ले जाना मुमकिन नहीं होता था। दूसरी बात ये कि फौज मुमलिकत इस्लामी के दिफा और अवाम ही के लिए अमन व अमान को महफूज बनाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखती थी, लिहाजा उनकी अखराजात फितरी तौर पर लोगों के ही जिम्मे पड़ते थे, और वो अपनी ज़रूरियात को लोगों के अमवाल में से लेने में हक बजानिब थे
اور عوام کا فرض تھا کہ وہ راضی ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ راضی نہ بھی ہوتے تو بھی سپاہی اپنا حق ان کے اموال سے لے سکتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں حمل و نقل کے تیز رفتار وسائل کی بدولت فاصلے بہت کم ہو گئے ہیں، اور اس دور کے وسائل کے ذریعے اشیاء ضروری کا حمل و نقل زیادہ دشواریوں کے بغیر بھی ممکن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہر فوج میں منظم اور تجربے کار انتظامیہ ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس طرح کے کاموں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور غضب کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے۔ غصب کا غین سواد بے غصب کا حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ البتہ یہ امکان پایا جاتا ہے کہ لشکر اسلام دشمن پر حملے کے لیے لوگوں کی آباد زمینوں سے گزر جائے اور ان کو نقصان پہنچے، تو واضح ہے کہ اگر یہ کام لازمی ہو تو پھر وہی گزشتہ زمانے کی ضرورتوں کا حکم یہاں لاگو ہوگا۔ البتہ اگر قومی خزانہ ان زمینوں کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کر سکتا ہو تو جنگ کے خاتمے پر ان کی تلافی کر دینی چاہیے۔ یوں مکتوب 60 ہم نے مکمل پڑھ لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔